নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে মিড ডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত 10 খাৱৈত আবদ্ধ হৈ আছে পোৱালিসহ 5টা হাতী লক্ষীপুৰৰ ছয়বাৰীত নিখা 10 খাৱৈত আবদ্ধ হৈছিল 5টা হাতী বন বিভাগে খাৱৈৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদি এতিয়া পোৱালিকেইটাক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই হাতীকেইটাক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই বন বিভাগে খাৱৈৰ পাৰ কাটি উদ্ধাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো হাতী পোৱালিসহ হাতীকেইটাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ আপডেট নিখাৰে পৰা আবদ্ধ হৈ আছিল 5টাকৈ বন্য হস্তি পোৱালিসহ 5টাকৈ বন্য হস্তি এই 10 খাৱৈটোত আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু তাৰ পিছতে খবৰ দিয়া হৈছিল বন বিভাগৰ এটা বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ হাতীকেইটা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাই আৰু অৱশেষত দুখনকৈ জেচিবিৰ সহায়ত খাৱৈৰ পাৰ কাটি হাতীকেইটা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাইছো অৱশেষত বন বিভাগ সফল হ'ল হাতীকেইটাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ 5টাকৈ হাতী খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অহাৰ পথত 10 খাৱৈত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল পোৱালিসহ এই 5টা হাতী আৰু তাৰ পিছতে বহু ঘণ্টা জোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত খাৱৈৰ পাৰ কাটি হাতীকেইটা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বন বিভাগ আমি দেখুৱাইছো সেই দৃশ্য দুখনকৈ জেচিবি অনা হৈছিল এই ঘটনাস্থলীলৈ দুখনকৈ জেচিবিৰ সহায়ত খাৱৈৰ পাৰ কাটি এই 5টাকৈ আবদ্ধ হৈ থকা হাতীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বন বিভাগ ইফালে মাজুলী দুটাকৈ গড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে মাজুলীৰ আউনিআটি সত্ৰৰ সমীপত বিচৰণ কৰিছে গড় দুটাই কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহি জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে গড় দুটাই গড়ৰ আক্ৰমণৰ ভয়ত পথাৰলৈ যাব পৰা নাই কৃষকসকল লোকসকলক সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ লোকে বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দুইটা গড় খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়া সফল হোৱা নাই বন বিভাগ সকলো প্ৰচেষ্টাই হাতত লৈছে বন বিভাগে গুলি ফুটাই গড় দুটা খেদিবলৈ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে গড় দুটাৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ পথাৰলৈ যাব পৰা নাই কৃষক মাজুলীৰ খবৰ এয়া মাজুলীৰ আউনিআটি সত্ৰৰ সমীপত বৰ্তমানেও মুকলি বিচৰণ কৰি আছে কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা দুটাকৈ গড় ৰাইজক সতৰ্ক হ'বলৈ বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে জাতিৰ পিতৃপুৰুষ চাউলুং চুকাফাক সুঁৱৰি চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰী নগৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কেন্দ্ৰীয় চুকাফা তথা অসম দিৱস পালন কৰে পৰিষদৰ সভাপতি ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱাই পতাকা উত্তোলন কৰি অসম দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰে চুকাফাৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰ সংৰক্ষিত কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বৰ অসীম সাহস অত্যন্ত উদ্যম আমাৰ চীনা সংস্কৃতিতকৈও এক পুৰণি সংস্কৃতিৰ উমাল লৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত চাউলুং চুকাফাই আৰু এই মুলুকত প্ৰৱেশ কৰি এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি সত্তাসমূহক একত্ৰিত কৰি বৃহৎ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰিছিল লগত লৈ আহিছিল অফুৰন্ত সাহস উদ্যম কৰ্মপ্ৰেৰণা আৰু তাৰ সেই কৰ্মপ্ৰেৰণা উদ্যম সাহসেৰে পৰৱৰ্তী দিনত এই জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো ত্বৰান্বিত কৰিছে কাৰণ তেওঁ যি কৰ্ম দক্ষতা উদ্যম সাহস সেই কৰ্ম দক্ষতা সাহস তাকে প্ৰেৰণা হিচাপে লৈ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি পৰিষদৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সৌজন্যত আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে চুকাফা দিৱস আয়োজন কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ চুকাফাৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি সত্তাসমূহক একত্ৰিত কৰি আমি যাতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সেই যি বাট সেই বাটেৰে বাট বুলিব পাৰোঁ তাকে সাৰোগত কৰি আজিৰ আমি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক হানসেং কোঁৱৰৰ সৈতে হানসেং অসম দিৱস পালন কৰা হৈছে কেইবাটাও তেওঁলোকে দাবী আজি উত্থাপন কৰিছে এই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম
হয় জয়ন্ত ক'ব লাগিব যে আজি অসম দিৱস অৰ্থাৎ চুকাফা দিৱস মুংডুং চুংখাম অৰ্থাৎ সোণোৱালী শস্যৰ দেশ বা অসমৰ যি প্ৰথম ৰাজধানী চেৰাইদৈ এই চেৰাইদৈ সদৰ সোণাৰীত আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আৰু চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ যৌথভাৱে তেওঁলোকে ইয়াত আয়োজন কৰিছে আৰু মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখিছে সুবিশাল মঞ্চ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি জাতিৰ পিতা আৰু বৰ অসমৰ স্ৰষ্টা চাওলুং চুকাফাক এনেধৰণে তেওঁলোকে সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰিছে আমাৰ মাজত বিভিন্নজন উপস্থিত আছে ইয়াত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে লৈছে নিশাৰ ভাগলৈ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে ইয়াত গীত পৰিৱেশন কৰিব ইয়াৰ পূৰ্বে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে মই কৈছো পুনৰবাৰ আমাৰ মাজত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সম্পাদক পলাশ চাংমাই আছে আমি জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে যিটো আজি কাৰ্যসূচী লৈছে জাতিৰ পিতাক স্মৰণ কৰাৰ লগতে অসমীয়া জাতিৰ স্ৰষ্টাও তেওঁ কি ক'ব মুংডুং চুংখাম সোণালী শস্যৰ দেশ এই নামাকৰণ কৰিছিল অসমক টাই ৰাজকুমাৰ চাওলুং চুকাফাই আৰু তেখেতৰ পবিত্ৰ স্মৃতিতে আমি অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰি আহিছোঁ আমি প্ৰধানকৈ চাওলুং চুকাফাৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শ সাৰোগত কৰিয়ে তেখেতৰে দেখুৱাই যোৱা যি বাট সেই বাটেৰে আমি আগবাঢ়িব খোজোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই স্মৃতি দিৱসটিত চাওলুং চুকাফাই যেনেধৰণে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি সত্তাসমূহক একত্ৰিত কৰি বৃহৎ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰিছিল আৰু কেৱল মাত্ৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াক ত্বৰান্বিত কৰাই নহয় জাতিটোক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই যিটো দৃষ্টিভংগী সেই দৃষ্টিভংগীটো আজি খুবেই প্ৰয়োজন আজি যদি আমি চাওঁ যে জনগোষ্ঠী জনজাতিবিলাকৰ মাজত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত এক বিভেদৰ বীজ হেঁচি দিয়া হয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা জনগোষ্ঠীয়ে আন এটা জনগোষ্ঠীক সন্দেহৰ চকুৰে চায় আমি যদি এই ইয়াৰ সমাধান বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি চাওলুং চুকাফাই যি বাট দেখুৱাইছিলে সেই বাটেৰে যাব লাগিব আন এটা বিষয় আজি সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্যখন যে স্বনিৰ্ভৰশীল নহয় এই কথাটো খুবেই প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ মেলে মিটিঙে সভাই সমিতিয়ে আমিও কওঁ যে ৰাজ্যখন স্বনিৰ্ভৰশীল যে নহয় কিন্তু স্বৰ্গদেউসকলে যেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিল শাসন কৰিছিল তেতিয়া কিন্তু ৰাজ্যখন স্বনিৰ্ভৰশীল আছিল তাৰ এটা সৰু উদাহৰণ মই আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ যে নিমখৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সেই সময়ত আহোম ৰাজত্বকালত কলৰ মধুনাত খাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু সেয়েহে অসমীয়া মানুহক আচলতে খাৰ খোৱা অসমীয়া বুলি কোৱা হয় গতিকে ইয়াত যিহেতু আমাৰ সাগৰ নাই নিজাববীয়াকৈ আমি নিমখ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে কলৰ মধুনাত নিমখ প্ৰস্তুত কৰি লৈছিলে বা নিমখৰ পৰিৱৰ্তে খাৰ প্ৰস্তুত কৰি লৈছিলে গতিকে এই পৰ্যায়লৈকে স্বনিৰ্ভৰশীল এটা জাতি কিন্তু আজি আমি ৰাজ্যখনৰ বাহিৰৰ পৰা যদি সামগ্ৰী নাহে ৰাজ্যখন নচলিব আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ শৈলী আমাৰ অচল হৈ যাব গতিকে আমি ভাবোঁ যে মানুহ স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ হ'লে বা আমি জাতিসত্তাসমূহ কেনেধৰণে একত্ৰিত কৰি ৰাখিব লাগে সেই বাট আমি চাওলুং চুকাফাৰ পৰাই ল'ব পাৰোঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে আজি এই চৰকাৰখনে আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ মঠ মন্দিৰ বা বিভিন্ন আমাৰ যিবিলাক সত্ৰ আছে সেই সত্ৰসমূহ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰিছে বা তাত যিবিলাক বেদখল হৈ আছে সেই বেদখল মুক্ত কৰিছে কিন্তু আজিও আমি জানে এই পিতৃপুৰুষগৰাকীৰ যিটো সমাধি ক্ষেত্ৰ বা মৈদাম ক্ষেত্ৰ অনাদিত অৱস্থাত আছে অৱহেলিত অৱস্থাত আছে কেৱল মাত্ৰ তেওঁৰেই নহয় তেওঁ উত্তৰ হৰি স্বৰ্গদেউসকলৰো যিবিলাক মৈদামস্থলী আছে বেদখল হৈ আছে অনতি বিলম্বে বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰিব লাগে লগে লগে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষিত স্থলী হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগে হয় নিশ্চিতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰিছে আমাৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখিছে যে সমবেত সংগীতেৰে যি অসম দিৱস উদযাপন কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সৌজন্যত সোণাৰীত এই ধৰণে তেওঁলোকে সমবেত সংগীতৰ আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন দাবী উত্থাপন হোৱাৰ মাজতেই বহুত দিনৰ পিছত আচলতে এনেধৰণে উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে অসম দিৱস অৰ্থাৎ চুকাফা দিৱস অসমীয়া জাতিৰ স্ৰষ্টা সাত ৰাজ সামৰি এক ৰাজ কৰা চাওলুং চুকাফাক এইদৰে স্মৰণ কৰিছে প্ৰথম ৰাজধানী চৰাইদেউৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ মই এয়া 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত মুংডুং চুংখামত প্ৰৱেশ কৰি এই ধৰণে আচলতে তেওঁলোকে ইয়াত ৰাজধানী গঢ়ি তুলিছিলে আৰু তাৰপিছতে এয়া সমবেত সংগীতেৰে সোণাৰী ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত অসম দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী এয়া আৰু সমবেত সংগীতেৰে আৰম্ভ হৈছে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী আমি দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সোণাৰীৰ দৃশ্য
ঐতিহ্যমণ্ডিত চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰীৰ দৃশ্য এয়া অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বত উদযাপন কৰা যি চুকাফা দিৱস আছে, চুকাফা দিৱসৰ মুকলি মঞ্চত এইদৰে শিল্পীসকলে, চৰাইদেউৰ শিল্পীসকলে, কলা কৌশলীসকলে সমবেত সংগীতেৰে বৰ্ণাঢ্য এক মহেন্দ্ৰ ক্ষণত উপনীত কৰিছে সোণাৰীক। ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আয়োজন কৰিছে। নিশাৰ ভাগলৈ অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে গীত পৰিৱেশন কৰিব। আৰু ক'ব লাগিব যে কৰোণা কালৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ধৰণে কাৰ্যসূচী বহুলভাৱে আচলতে চৰাইদেউ জিলাত আৰম্ভ কৰা হৈছে। ব্যাপক সহযোগিতা পোৱা গৈছে চৰাইদেউৰ জনসাধাৰণৰ পৰা, চৰাইদেউৰ প্ৰশাসনৰ পৰা, আৰু সম্পূৰ্ণ নীতি নিৰ্দেশনা অনুযায়ী এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। আৰু সমবেত সংগীত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, সমবেত সংগীতেৰে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইয়াক সোণাৰীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছো। আমাৰ সাংবাদিক হানচেং কোঁৱৰে এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছে, য'ত আজি সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰা হৈছে চাওলুং চুকাফাক। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি দিল্লীলৈ আপোনালোকক লৈ যাম। চৌপাল অনুষ্ঠান য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। सारे फैसले कम्युनल है। वो लेफ्ट लॉबी बड़ी परेशान रहती है आपसे। मेरा फैसला मैं लेता हूं, लेकिन अगर लेफ्ट को लेके मैं फैसला लूं तो नेक्स्ट टाइम मुझको कौन वोट डालेगा? लेफ्ट लोग वोट डालेगा क्या मुझको? तो सारी मतलब लेफ्ट लॉबी सबका ही कहना है कि सारे फैसले, सारे विवादित फैसलों का ठेका जो है ना हिमंत बिस्व शर्मा ने ले रखा है। कहते सारे कम्युनल फैसले लेते हैं। मेरा मन कथित कम्युनल, मेरा मन यही है। देखिए, कौन कम्युनल है, कौन कम्युनल नहीं है, उनको निर्णय लेने का ठेका हमने लेफ्ट को देके नहीं रखा हूं। तो इसलिए मेरा मैंडेट है, जो मुझको करना है, और ये भारतीय सिविलाइजेशन के लिए जो करना है और दम से करूंगा, और करने के लिए ही पावर में आया हूं और करना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी जब आ रहा था तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मई से लेकर अब तक 28 दुर्दांत अपराधी मारे जा चुके हैं और 48 जो हैं वो जख्मी हैं। ये ठोको वाली पॉलिसी जैसे यूपी में है वैसे ही असम में चल रही है। नहीं,
ये तो फैक्चुअल पोजीशन है। इतना हादसा हुआ है, अच्छा हुआ है। इतना इतना पकड़ा हुआ जाना है, अच्छा है तो या ठोके उसमें- जाना अच्छा है? नहीं, देखिए, ये मैक्सिमम जो 28 और 100 जो भी हुआ है, या तो वो लोग ड्रग्स का साथ इन्वॉल्व था, या तो कोई रेप वगैरह काम में वो लोग इन्वॉल्व था। तो पुलिस का साथ मतभेद में मारा गया है या किसी को इंजूर हुआ है, तो हमने इंक्वायरी लगाए हो। अगर पुलिस ने कुछ किया है तो पुलिस का ऊपर व्यवस्था लिया जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट ही है। तो आप ऐसे क्या गाड़ी कर सकता है? ऐसे ही उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटती है। मैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मेरा मालूम नहीं है, लेकिन असम में जो हो रहा है मैं ही आपको बता नहीं, रहा हूं। मैं असल में जब तुलना कर रहा था, वहां पर भी अपराधी मारे जा रहे हैं, यहाँ पर भी एनकाउंटर, वहां पर गाड़ी पलटती है, यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, वहां बुलडोजर चलते हैं, यहाँ ड्रग माफियाओं पर बुलडोजर चलते हैं, वहां लव जिहाद, यहाँ लव जिहाद, देखिए, वहां जनसंख्या नियंत्रण, यहाँ देखिए, जनसंख्या, कोई कंपटीशन चल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी शादी होता है, असम में भी शादी होता है। उत्तर प्रदेश में पूजा होता है, असम में भी पूजा होता है। तो आपने खाली एक विषय क्यों बोला, बाकी भी बोलिए ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा लगता है जैसे ना कोई योगी जी, और मतलब उत्तर पूर्व का योगी कहते हैं आपको तो वैसे। नहीं, देखिए, मैं कभी उत्तर प्रदेश गया भी नहीं हूं, शायद जीवन में 1-2 बार गया हूं। आएंगे नहीं, चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि भारत में हर प्रदेश में जो होता है एक ही होता है, कल्चर एक है, सिविलाइजेशन एक है। तो वहां फायरिंग हुआ है, यहां फायरिंग हुआ है, वो सब तो बुरा बात है, लेकिन अच्छा बात भी तो एक ही जैसा होता है ना। वहां गाड़ी पलटती है, यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं बोला ना, वहां वहां भी बुलडोजर शादी होता चलता है, है, यहां यहाँ भी शादी बुलडोजर। होता है। वहां भी लोग कपड़ा पहनता है, वहां भी लोग कपड़ा पहनता है। मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। हैं, बंद पूरा 700 अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है, और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल, ये सब बनाने का मन में इरादा है। कितना संभव होगा नहीं होगा नहीं जानता हूं, लेकिन इरादा वही है कि हमारा मुसलमान भाई बहन मदरसा में ना जाए, उसका जगह में वो लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज को रोशन करे। मन में इरादा वो है, कितना कर पाऊंगा वो पता नहीं। 700 अभी तक हुआ है। तो मदरसे बंद हो जाएंगे तो विरोध, मतलब पूरा बैन, मदरसे पूरा असल में अभी बंद। स्कूल हो गया ना। अच्छा, जो 700 सरकार चलाता था मदरसा, क्यों कांग्रेस क्यों? का कोई जमाना। कोई वजह क्यों? तो अभी मैंने स्कूल कर दिया, लोग खुश है। मैंने बच्चा को तो पूछा, उसके रहते हुए भी मदरसे भी रहे, स्कूल भी रहे। नहीं, पता नहीं आपका यह सजेशन है, लेकिन मैंने जब स्कूल में गया, मैं लोगों को पूछा क्या बनना चाहते है बेटा? दादा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। मैं बोला आप तो गलत जगह में आ गया, यहां तो आप डॉक्टर नहीं बनेगा, यहां तो आप मौलवी बनेगा। बोले ऐसा है क्या? क्या बनेंगे? बोले आप तो मदरसा अगर पढ़ेगा हाँ। तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? तो बच्चा बोला क्या हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकता हूं? मैं बोला ना, ये स्कूल से तो नहीं बन सकते हो बेटा। क्या बनेंगे वहां से? तुमको किसने डाला? बोले मेरा पिताजी ने इसमें डाला। तो मैं बोला देखो ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तुमको जब डॉक्टर बनना चाहिए था तो तुम अभी मौलवी कैसे बन सकते हो? तो इसलिए मैंने वो स्कूल को नॉर्मल स्कूल तक कन्वर्ट कर दिया हूं। अभी लड़का लड़की डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा होगा ना। मदरसे बंद होंगे, मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ बैन, जनसंख्या नियंत्रण, लव जिहाद, मियां वोट नहीं चाहिए, ये सब समझ रहे हैं ना? मैं अगर बोलो कि वोट दीजिए तो देगा। अच्छा, आपको मियां वोट नहीं चाहिए? अरे मैं बोला कि देखिए, मैं आपको बोला मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन मेरा पक्का मन में है कि आप मुझको प्यार नहीं करता है, तो मैं आपको क्यों बोलो जाके मैं आपको मदरसे प्यार बंद करता करेंगे तो कहां से प्यार करेंगे वो? हूं? मदरसा तो मैं कौम का अच्छे के लिए बंद किया ना। ये तो कौम के लिए तो मैं ये नहीं चाहता हूं मेरा नाम इतिहास में लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर कौम का कभी इतिहास बनता है तो लिखना चाहिए कि ये असम से मौलवी से ज्यादा मुसलमान समाज में डॉक्टर ज्यादा होता है, इंजीनियर ज्यादा होता है।
अगर वो काम मैं 5 साल में कर सकता हूं तो उससे ज्यादा मुसलमान समाज तक कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, आप बताइए। तो मियां वोट नहीं चाहिए? देगा, आप खबर करिए, जो दिन वो लोग तैयार हो जाएगा तो मैं बोलूंगा वोट दीजिए। आप बोलेंगे चाहिए तो मिलेगा ना। ऐसा आप पहले कहेंगे नहीं मैं चाहिए। आगे क्यों बोलो, इतना तो अक्ल होना चाहिए ना। मैं आगे बोलो फिर वो लोग नहीं देगा, तो दोनों समान होगा कोई दिन। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा के लिए नहीं सही है। जो बेटा बच्चा मद्रासा का जगह नॉर्मल स्कूल में डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, ये लोग हमको जरूर वोट डालेगा। लेकिन फिलहाल वो सिचुएशन नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी पिछली बार आपसे बात हो रही थी तो मंदिर के 5 किलोमीटर में बीफ बैन, फिर मैंने आपसे पूछा था तो आप तो हर 5 किलोमीटर में मंदिर खुलवा देंगे। ये लोगों का हिस्सा है, कोई मंदिर खुले तो मैं जाके कैसे बंद कर सकता हूं? तो हर 5 किलो में मंदिर तो मतलब पूरे असम में ही बैन हो जाएगा फिर? तकलीफ मंदिर हो उसमें तकलीफ नहीं है, तकलीफ होता है जब गोवध होता है। तो आप जब क्वेश्चन करता है, मेरा लगता है आपका मंदिर में तकलीफ है कि गोवध में तकलीफ है। हमको तकलीफ होना चाहिए गोवध में। अगर कई जगह में मंदिर खुले ना, हर घर में मंदिर होता है भारत में, उसमें आपत्ति क्या है? अगर मंदिर बनता है तो उनका 5 किलोमीटर रेडियस में बीफ ईटिंग और सेलिंग नहीं होगा, यह कानून है। बाकी मंदिर कोई बनाए, मैं कैसे मना कर सकता हूं? बदरुद्दीन अजमल कहां अंडरग्राउंड हो गए? बदरुद्दीन अजमल नहीं दिख रहे हैं आजकल। आपके आने से पहले बहुत वोकल थे, अब मतलब ठीक है, अभी आसाम का हालत ठीक है और लोग ये समझ रहा है कि एक नया विचार से समाज आगे बढ़ रहा है और सारा लोग कोऑपरेट कर रहा है। अभी आप जो बोल रहे हैं कि मुझको मियां भूत नहीं सही है, मैं तो नहीं बोला। मैंने नहीं बोला, मैंने कहा आपने ऐसा कहा था। मैंने बोला हाँ। लेकिन मैं नहीं बोला, फिर भी लास्ट पास बाई इलेक्शन में काफी सारा मेरा मुसलमान भाई बहन आके हम लोग को वोट कर दिया है। तो वोट मिल रहा है, कर रहा है, इसलिए उन लोग को मालूम हो गया कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, अभी मुल्ला बनने से हमको कुछ नहीं होगा। तो ये चेंज होगा सोसाइटी में और थोड़ा इंतजार करना है, चेंज आ जाएगा। अभी बांग्लादेश में जो हुआ, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, आप सीए के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो बांग्लादेश के बंगाली हिंदू, उनको असम की नागरिकता मिले, वो असम में आकर बसे, आप तैयार हैं? देखिए, मैं बांग्लादेश का ऊपर कमेंट करना नहीं चाहूंगा, इसलिए ये मेरा पड़ोसी देश है। लेकिन अफगानिस्तान में जो हुआ, वो सिचुएशन देखने का बाद लोगों का मन में ये कोई संदेह नहीं रहना चाहिए क्यों मोदी सरकार ने सीए लाया था। भारत हिंदू का एक सिविलाइजेशन था और भारत एक हिंदू का सिविलाइजेशन रहेगा। सो दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू का तकलीफ हो, वो लोग को भारत लौट के आने का अधिकार होना चाहिए, जहां भी हिंदू का तकलीफ हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई तकलीफ होने से भारत का मुस्लिम अगर अमेरिका में है उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन भारत एक हिंदू सभ्यता था, भारत एक हिंदू सभ्यता रहेगा। तो अगर कोई जगह में हिंदू का तकलीफ होता है, रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, तो उनको अपना मातृभूमि में लौट के आने का अधिकार होना चाहिए। इसी पर तो दर्द है कि धर्म के आधार पर क्यों भाई? धर्म का आधार में ही तो है दुनिया। हम लोग 5000 साल पहले से तो ये धर्म का आधार ही तो भारत हुआ करता था। नहीं, नागरिकता धर्म के आधार पर क्यों? नागरिकता सबसे बड़ा विरोध यही है ना। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में अहमदिया, अफगानिस्तान से कितने मुसलमान भाई लटके हुए। देखिए, अगर मेरा ये मातृभूमि है, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली हर हिंदू का मातृभूमि भारत है। भारत से ही तो सभ्यता जन्म हुआ था ना, अनलेस यू हैव गॉट कन्वर्टेड इन अमेरिका फ्रॉम सम अदर रिलीजन टू हिंदू। तो हर हिंदू का जो रूट है वो भारत में बसा हुआ है, हिंदुस्तानी की है ना, हिंदू का है, हिंदू का। इट वाज ए हिंदू सिविलाइजेशन। यहां में वेद होता था, यहां में उपनिषद होता था। हर हिंदू का जो रूट है वो भारत से जुड़ा हुआ है। तो मेरा जहां भी तकलीफ होगा, मेरा पास इतना अधिकार होना चाहिए भारत में लौट के आने का।
इतना अधिकार तो मेरा इनबिल्ड है, इनहेरेंट अधिकार है मेरा। लेकिन कहते भारत तो सबका है देखिए, भाई, कानून सिर्फ तो हिंदुओं का थोड़ी ना है, भारत देखिए, तो भारतीयों का है ना। मैं मना किया हूं कि दूसरे लोगों को आने में। हाँ, किया मुसलमान। अगर नहीं, कोई अगर मुसलमान भाई भी आना चाहते हैं, भारत में एप्लीकेशन डाले, भारत सरकार विचार विमर्श करेगा, आना है तो आएगा, वो अलग बात है। सीए रूट से नहीं। लेकिन हिंदू, इट इज अ नेचुरल राइट्स ऑफ हिंदूज टू कम बैक टू इंडिया। जैसे एक आज आप अगर हिंदू कहा जाएगा नहीं तो किसलिए, पूरा दुनिया में तो एक ही देश है। और ये जो सेकुलर वाला जो बात आया, ये 1947 से आया, लेकिन इसका पहले हम लोग क्या था, ये तो एक पूरा 5-6 हजार साल से ये हिंदू का देश रहा है और हिंदू का देश ये रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां में मुसलमान नहीं रहेगा, लेकिन प्राइमेसी और जो भी है, हिंदू का एक इनबिल्ट अधिकार है ये देश में। किसलिए, ये देश में से ही हिंदू आज दुनिया में गया था, नहीं, पता है तकलीफ हुआ तो यहां आएगा। हेमंता जी, हिंदू का देश है, हिंदुस्तानियों का देश। देखिए, आपका मन में वो अंतर है, मेरा मन में वो अंतर नहीं है। तो मेरा मन में क्या हिंदुस्तानियों अंतर? का देश, मतलब आप क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं? तो हिंदुस्तानी हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। देखिए, ये वर्ड तो 1947 में आ गया। बात ऐसा है कि हर हिंदुस्तानी हिंदू भी था, हर हिंदू हिंदुस्तानी भी है, उसमें अंतर कहां है? मुझको तो अंतर दिखाई नहीं देता है। तो यहां बाबर आने का पहले सब तो हिंदू ही था, तो फिर कोई अलग था क्या? तो फिर सबको ले लीजिए, फिर धर्म मैं आधारित तो क्यों? लेने के लिए तैयार हूं, अगर भारत को मातृभूमि मानते हैं और भारत का सिविलाइजेशन को अपने आप को स्वीकार करता है। आप भारत में आइए, पैकेज का साथ मत आइए, आप भारत का पैकेज को लीजिए। लेकिन आप भारत में आके कोई दूसरा पैकेज को यहां थोपना चाहेगा, तब तो आप हिंदुस्तानी नहीं हुआ ना। कृषि कानून की वापसी के बाद कोई संशय कि कहीं सीए भी ना वापस हो जाए? मेरा असम में बहुत ज्यादा कृषि कानून का चर्चा नहीं है, इसलिए हमारा मेन जो उत्पादन है वो चाय से होता है। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कृषि कानून की वापसी के बाद ये तो नहीं डर कि सीए भी कहीं वापस ना हो जाए? देखिए, मैं सीए का क्या होगा नहीं होगा ये संसद का अधिकार है, कैबिनेट का अधिकार है। लेकिन आपने मुझको क्वेश्चन पूछा और मेरा स्पष्ट जवाब है कि दुनिया में बसे हुए सारे हिंदू का अगर तकलीफ होता है, रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, उनको भारत में आने का इनबिल्ट राइट होना चाहिए। तो फिर बांग्लादेश में जो बंगाली हिंदू हैं, दीदी उनको नहीं, वो तो भगा रही हैं, वो तो एनआरसी नहीं होने दे रही, तो असम में वेलकम करेंगे आप? दीदी का नहीं है, भाई का है ना ये मन। आप अगर दीदी का बात सुनता है तो भाई का भी बात सुन लीजिए। तो दीदी की दादागिरी वहां चल रही है, वो आने नहीं दे रही है। तो देखिए, घर में दीदी एट द एंड ऑफ द डे भाई का ही बात मानना पड़ता है। ऐसा दिन दुनिया में आप कोई दीदी नहीं मिलेगा जो अपना छोटा भाई का बात नहीं मानेगा। आप पूछ के, आपका घर में भी होगा, राखी पहनने का दिन आपको मालूम होता है। जी जी जी। तो दीदी को भाई का बात मानना पड़ता है, भाई का बात थोड़े दीदी मानते हैं। लेकिन सीए तो लागू ही नहीं हो पा रहा ना। दीदी का बात मैक्सिमम भाई नहीं मानता है, भारत में भाई का बात ही दीदी को मानना पड़ता है। हेमंता जी, सीए तो लागू नहीं हो पा रहा, रूल्स ही नहीं नोटिफाई हो रहे हैं। देखिए, ये मेरा डिले हुए जा रहा है, डिले हुए जा रहा है, आज तक लागू नहीं हो पाया सीए। आप वो तो ये बात तो आप दिल्ली में रहता है, आपको ज्यादा मालूम होगा सीए कब लागू होगा नहीं होगा। आपने मेरा विचार मांगा, मैंने मेरा विचार अपना आपका विचार है कि देरी हो रही है? मेरा विचार मैंने टेबल में रख दिया हूं, आपका समक्ष रख दिया हूं, और वो विचार हम असम में भी रखता हूं और असम का बाहर भी रखता हूं। एक सवाल है सीए को लेकर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कट ऑफ डेट जो है सीए की 2014 है, वो आगे बढ़नी चाहिए? नहीं, मेरा तो स्पष्ट मन है कि, क्योंकि और मेरा मत है, 2015-16 देखिए मैं कानून नहीं बनाता हूं, लेकिन जो मेरा छोटा दिमाग से जो आते हैं, मेरा यही बात है कि हिंदू का तकलीफ होने से वो कहां जाएगा, जाएगा कहां? आप वो क्वेश्चन आंसर कीजिए ना। आज जो अफगानिस्तान में हमारा सिख भाई का तकलीफ हुआ, हिंदू भाई का तकलीफ हुआ, ये लोग अभी जाएगा कहां? नहीं तो 14 के बाद भी कहां जाएगा? कट ऑफ 14 है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, कट ऑफ 2014 है। 2014 कट ऑफ है।
हाँ 16। लेकिन मुझको आप पूछे, हाँ। देखिए मैं तो कट ऑफ नहीं बनाता हूं ना, लेकिन मुझको ये बात पूछे तो मेरा स्पष्ट मन है कि जहां भी हिंदू रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार होगा, हिंदू को भारत लौटने का अधिकार होना चाहिए। ठीक। 50 साल आगे भी, 100 साल आगे भी वो अधिकार रहना चाहिए। लेकिन कट ऑफ नॉन कट ऑफ ये कानूनी बात है, वो पार्लियामेंट को देखना है, पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन मेरा बात यही है कि नदी तो समुद्र तक ही जाएगा ना, तो हिंदू भारत में रिलीजियस परसिक्यूशन होने में हिंदू को भारत लौटने का एक अधिकार होना चाहिए। ये उनका देश था और उनका वो देश रहेगा। आगे बढ़ते हैं सर। और आज भी आप देखिए, अगर हिंदू कोई भी जगह में है, whenever India is in trouble, they cry for India. When India is in good mood, they feel happy for India. तो ये तो जहां भी रहे, इट इज देयर एक्सटेंडेड मदरलैंड। आज आप अमेरिका में जाइए, भारत पाकिस्तान का गेम होगा तो भारत जीतने से पाकिस्तान का अमेरिका का हिंदू लोग भी लाडू बांटते हैं। मतलब दिल में तो हमेशा इट इज देयर एक्सटेंडेड मदरलैंड है ना। और पाकिस्तान के जीतने पर यहां पर भी पटाखे कुछ लोग फोड़ते हैं, वो भी है। इसलिए मैं बोलता हूं ना, सबको भारत में आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का प्रेम लेके नहीं आना चाहिए। पैकेज इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। हिमंता जी आगे बढ़ेंगे। आपके जो प्रिय राहुल गांधी जी, वो पिद्दी वाला जो आपका पूरा एपिसोड था, आपने बताया उसी बिस्किट की प्लेट से बाकी कांग्रेसी चलिए, अभी मैं राहुल गांधी का सरसा नहीं करता हूं, राहुल गांधी को मेरा ऊपर सरसा करने दीजिए। क्यों मैं उनका सरसा करता हूं? कांग्रेस कोई संवैधानिक पद में भी नहीं है। नहीं, मैं राहुल जी की चर्चा नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस की ये स्थिति सारे, आपने जो शुरुआत करी ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपने जो शुरुआत करी वो भी 3-4 दिन पहले तक जारी है। अशोक तंवर, कीर्ति, मतलब सारे छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्या हो गया? आपको तो पता होगा। ऐसा है कि जो कांग्रेस का जो एक पृष्ठभूमि था और कांग्रेस को भारत को देखने का जो नजरिया था, उससे भारतवासी बाहर निकाल गया। पहले एक समय था, इंदिरा गांधी जी का फोटो देखेगा लोग वोट डालेगा, फिर इंदिरा जी का पोता है तो उनको वोट डालना चाहिए। एक फ्यूडल माइंडसेट था, एक परिवार को देखने का एक अलग एक दृष्टिकोण था। लेकिन अभी भारत उनसे आगे निकाल गया। अभी भारत हैज गॉन बियॉन्ड गांधीज। तो इसीलिए कांग्रेस को अगर बचना है, रहना है, पॉलिटिकल स्पेस उनको लेना चाहिए, तो कांग्रेस को अपने आप को न्यूली इन्वेंट करना पड़ेगा। नहीं तो आज का जो कांग्रेस है वो चल नहीं पाएगा। दिक्कत कहां है? दिक्कत यही है ना, बार बोलता है नहीं, विदाउट गांधी फैमिली वी कांट लिव। ये भारतवासी के लिए अपमान नहीं है क्या? तो आज ऑन 21st century, इफ यू वांट टू पुट ए फैमिली ऑन द सेंटर स्टेज, बोले ये विद्वान है मैं इसके लिए उनका साथ हूं, ये पॉपुलर लीडर है मैं उनका साथ इसलिए हूं, लेकिन वो कोई पिता माता का संतान है इसलिए मैं उनका फैमिली का साथ हूं, नया भारत को स्वीकार्य नहीं है। भारत आगे निकाल गया। तो प्रॉब्लम ये क्या है? फंडामेंटल प्रॉब्लम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस, अभी ममता बनर्जी ने कहा कि आधा समय विदेश में रहेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे राहुल जी, यूपीए कहां है, यूपीए खत्म हो गया है। मैं सवाल, ये मूल सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस से एलर्जी क्यों हो रही है सबको? मतलब हर कोई दूरी क्यों बना रहा है? अगर राहुल जी के नेतृत्व से दिक्कत है। माँ प्रेसिडेंट होता है, उनका बेटा जनरल सेक्रेटरी होता है, बेटी जनरल सेक्रेटरी होता है, उनका पोता भी जनरल सेक्रेटरी होगा, उनका पोता का पीछे क्या होगा उसका भी विचार विमर्श अभी से शुरू हो जाएगा। तो ऐसा चीज, ऐसा व्यवस्था आज का नया भारत को स्वीकार्य है क्या? अगर आपका कोई क्वालिटी है तो अलग बात है। आपका क्वालिटी क्या है कि आप फलाना फलाना का बेटा है, तो भारत उनसे आगे निकाल गया है। कांग्रेस का जो स्पेस अभी बसा कुसा है वो स्टेट लीडर्स के लिए बसा कुसा है। जहां भी थोड़ा स्ट्रांग लीडर्स है उनके लिए पॉलिटिक्स बसा हुआ है, नथिंग टू डू विद द गांधीज एज ए होल। तो मेरा लगता है कि कांग्रेस अगर नया सीरीज से इन्वेंट करने का कोशिश करेगा तो उनका रिलेवेंस रहेगा, अदरवाइज नॉट। राहुल जी नेता क्यों नहीं, मतलब कोई एक्सेप्ट क्यों नहीं, उनका नेतृत्व तो स्वीकार क्यों नहीं है राहुल गांधी जी का? अभी अमेठी का पब्लिक को पूछिए वो क्यों हार गया।
नहीं, देश में विपक्ष अगर का अगर चेहरा अगर एक राहुल गांधी नेता में यहां से चुनाव लड़ने 300 किलोमीटर 3000 किलोमीटर जाके आगे सेफ सीट ढूंढूंगा तो मैं कैसे नेता बनूंगा? अच्छा, तो मैं ये बात तो उनको आपको पूछना चाहिए कि आप एक विशेष वर्ग जहां मेजोरिटी है वहां जाके आप क्यों चुनाव लड़ा? ठीक है, अमेठी आपके लिए ठीक नहीं था तो रायबरेली में लड़िए, लखनऊ में लड़िए। तो जब आपको इतना 1000 किलोमीटर आगे जाके लड़ना पड़ता है, ढूंढ ढूंढ के सेफ सीट रिसर्च करके लेना पड़ता है, तो उससे तो मेरा पंचायत प्रेसिडेंट का दम ज्यादा है। दादा इधर में ही टिकट दीजिए, मैं उधर में ही जीतूंगा। एक आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर। यूपी में आरोप लगता है कि आप लोग, अभी केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि काशी जारी है, मथुरा की अगली बारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगली कार सेवा होगी तो फूलों की बारिश होगी। आप लोग कम्युनल बना देते, जिन्नावादी, राजवादी। देखिए, काशी, मथुरा, आपका मन में वो क्यों है? अगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अगर उसमें कोई मंदिर का बात बोलता है तो उसमें आपको कम्युनल क्यों लगता है? मेरा तो यही दिमाग में पढ़ के मैं पागल हो जाता हूं कि भाई मंदिर का बात बोलने से आपको कम्युनल लगता है, लेकिन अगर आप बोलेगा मैं इधर वो दूसरा एक रिलीजियन का कुछ बनाऊंगा, आपको सेकुलर सर्टिफिकेट हो जाता है। जो सेकुलर सर्टिफिकेट लेने का जो भोग है, वो भोग से हम लोग को बाहर निकालना चाहिए, तब भी भारत जाके सेकुलर कंट्री बनेगा। हमको क्यों सेकुलर का सर्टिफिकेट चाहिए? हम सीधा सीधी हम हिंदू है, हिंदू रहेगा, और एक हिंदू ही सबसे ज्यादा दूसरा धर्म को सम्मान करने जानते हैं। एज ए हिंदू वी आर मोर सेकुलर देन द अदर मीनिंग ऑफ सेकुलर। अगर हिंदू है तो मैं परमात्मा का सारा आत्मा एक ही संतान है। तो मेरा जो नजर है देखने का ये बहुत ब्रॉड बेस है। तो इसीलिए यूपी में बहुत जो भी पुराना मेरा मंदिर था वो मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर बनने का तरीका क्या है, कैसे बने, वो एक अलग विषय है। मेरा मालूम भी नहीं है, मेरा ज्यादा जानकारी भी नहीं है उत्तर प्रदेश का राजनीति में। हिंदू ही सेकुलर और हिंदुत्व ही सेकुलर, हिंदू ही सेकुलरिज्म का सबसे ज्यादा गारंटी है। जो प्रदेश में हिंदू है वहां में मुसलमान शांति से रहता है, और जहां हिंदू माइनॉरिटी है वो जगह में डिक्टेटरशिप होता है। और वही आप पूरा एग्जाम्पल देके देखिए। मतलब हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही सेकुलरिज्म की गारंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट से आपको एहसास हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हेमंत बिस्वा शर्मा। बस एक मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंता जी। एक बार फिर से आपने बता दिया चौपाल के इस मंच में पर कि पूर्वोत्तर का चाणक्य आपको यूं ही नहीं कहा जाता। मिस्टर अविनाश कौल, मैं आपको चाहूंगी इनवाइट करना सर, ताकि आप न्यूज 18 इंडिया की तरफ से हेमंता जी को भेंट दे सकें। ग्रुप सीईओ टीवी 18 एंड एमडी AETN। जोरदार तालियां एक बार फिर से मैं चाहूंगी। न्यूज 18 इंडिया की ये चौपाल इसी तरह से आगे बढ़ रही है, संवाद इसी तरह से आगे बढ़ रहा है, और मकसद यही है कि हर संवाद के जरिए আৰু সেয়া আছিল নিউজ 18 ইণ্ডিয়া চৌপাল অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লাইভ। খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম। লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।